each other, flow of liquid takes place through pores. So the pores is two-way. Exactly the pores. When we go for the pores and the where one is one is individually means they are not interconnected, and another case is interconnected. जब हम लोगों ने बात किए थे ग्रिफिथ्स फेलियर थ्योरी में, ग्रिफिथ फेलियर थ्योरी के केस में क्या cracks the cracks or the failure is due to the fracture of the micro cracks or the fractures boundary layer. जब वो जो प्रोपोगेशन हो रहा था माइक्रो फ्रैक्चर का बाउंड्री लेयर तक, this is result in ultimately result in the failure of the rock mass. From inside of the rock mass, all the pores are generally interconnected, but sometimes not. It's depend upon the composition or the proportion masses. Write it down. Write down this equation. That is the who has given who has the postulated the permeability formula, that is Q is equal to IE, where Q is the quantity of the water, or rate of the seepage of the water. Quantity of the water, uh, K is the permeability constant, I is the hydraulic gradient, and A is the area of cross section. Area of cross section. So C, Q is equal to K, I, and A. So write it down. Write it down. Here I is hydraulic. It is also called hydraulic gradient. Hydraulic gradient. So what do you understand by the terms hydraulic gradient? Anyone? Anyone? What is general terms of gradient? Can you tell me? Gradient. So Basically, sir, inclination, sir. gradient is inclination. Change in Actual level. change in level. So changing of anything, changing, it's generally called changing of anything with respect to length. With respect to length, or respect to length is called gradient. Generally it's called gradient. So in case of the hydraulic gradient, it is called pressure per unit length. Pressure per unit length. But in case of permeability, we are dealing with rate of change of pressure with respect to rate of change of length. So write it down. Hydraulic gradient is delta P by delta L. Delta P by delta L. So Q is directly proportional. Here you can write capital Q or simple write Q. Both here equal. KIA. But sometimes we use for different terms. Sorry, it's called IA. It's directly proportional to IA. That means Q is directly proportional to I. If it is so, then it is Q is directly proportional to delta P by delta L. Delta P by delta L. So what does it means delta P by delta L? The physical interpretation of this, if you go for the interpretation, sorry, if you go for the physical interpretation, it just let us take, it is a rock mass, it is a cubical rock. Suppose it is a rock mass of length L. See, आप क्या होता है कि what आप यदि टर्मिनोलॉजी का फ्लो, दैट इज अ टर्म्स, व्हाट डज इट मीन्स, आपका फिजिकल इंटरप्रिटेट करते, तो इसका मतलब क्या है? द फ्लो मीन्स देयर इज विच पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल
and it is from higher to lower. So जब आपके पास पोटेंशियल हो एक लो पोटेंशियल होगा, then there is no word or terminology exist it's called, तो वो हमेशा हायर टू पोटेंशियल इफ आप वो कुछ भी वाटर के फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल आप करोगे और फ्रॉम हायर टू लोअर, दिस इज फिजिक्स कहता है कि इट्स कॉल्ड हायर टू लोअर. सो इन केस ऑफ पी प्लस डेल्टा पी, दैट इज एन हायर हाइड्रो, यहाँ पे क्या होता है कि दिस साइड इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सपोज लेट्स पी, so this is hydrostatic pressure, here hydrostatic pressure, so the density of, suppose this is in a water, ये वाटर बियरिंग स्टेट, आपके पास यहाँ वाटर कोई वाटर बॉडी है, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ एबेंडेंट माइन, इन केस ऑफ एबेंडेंट और कोई भी, तो यहाँ क्या होता है ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ वाटर बॉडी, हम लोगों ने बात किया था एक नया प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू इट ऑफ द वाटर, दैट्स पी प्लस डेल्टा प्रेशर है, यहाँ पे पी होगा, तो इसकी टेंडेंसी होगा कि दिस वाटर टू फ्रॉम दिस ऑफ मास एंड try to, it is a permeable body, कंसिडर ये परमेबल है तो यहाँ से यहाँ फ्लो करने का, इट इज रॉक मास. So what from, if you go for the differential equation, so what can you say, anyone? So it's called dp by, it is dp ये किस, ये तो पोटेंशियल डेल्टा पी डेल्टा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का कंडीशन कहाँ से आ रहा है हमारा, व्हाट इज हाइड्रोलिक, so now and this surface जहाँ से वो फ्लो करना चाह रहा है, the surface which directly in the contact or contact surface area, this is called A. Okay, so the Q, the quantity of the water, जो भी आपका quantity of water inflow करेगा, this is directly depend upon, first is delta P by delta L, delta P by delta L. What do you mean by delta P by delta L? Why it is delta P by delta L? सपोज कीजिए यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, देर इज इन टू केस, आप दो केस ले सकते हैं, ये रॉक का थिकनेस कम है, द लेंथ दिस L एंड सेम प्रेशर, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो वाटर क्वांटिटी का फ्लो होगा वो क्वाइट इजीली हो जाएगा और जल्दी होगा, द रेट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर विल बी इनफ्लो विल बी फास्टर इन दिस केस एज कम्पेयर टू दिस केस. So it's that means the quantity of the water is directly proportional to P and inversely proportional to delta L. जितना ज़्यादा आपका रॉक मास का लेंथ होगा उतना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और द रेट ऑफ द वाटर इनफ्लो वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा. इस केस से आप समझ सकते हैं. सो यू कैन से Q is directly proportional to delta P by delta L, that's called hydraulic gradient, and Q is directly proportional to, it's a little bit slow, Q is directly proportional to, that's A, contact surface area. Okay, so this is the basic formula for permeability. This equation is proposed by Darcy. So in this case आपका क्या होता है कि डार्सी के हमारे पास दो कंडीशन है. In case what happens, the measurement of hydrostatic pressure of the water, if you go for the measurement of hydrostatic pressure, आप चाहे अंडरग्राउंड माइंस में हो चाहे इन केस ऑफ वाटर बॉडीज के केस में हो, तो अब क्या होता है कि उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और समटाइम्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर.
सो वी इट इज़ बेटर टू स्टडी द रेट ऑफ सीपेज ऑफ द वाटर. आप यहाँ से रेट ऑफ सीपेज स्टडी कर लेते हैं तो इससे आपका आपका क्वाइट मतलब इजी हो जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ रॉक. So we have here we are considered as the rate of the flow of water. It's Q. Write one thing. Q is equal to capital Q by T. Its Q is volume of water. Total volume of water inflow. And its time. So hence Q small q is equal to rate of water inflow or flow something inflow or outflow. Yeah, rate of seepage sometimes. So do you get my point? Yes, sir. So the next topic, anyone has any confusion? अभी भी किसी कोई confusion या कोई questions हो? क्योंकि ये बहुत important. This is very important topic. So the next is determination of permeability. Write it down. Determination permeability. Now the first condition. तो आपका केस में जब आप लेबोरेटरी टेस्टिंग इफ यू गो फॉर द लेबोरेटरी टेस्टिंग जस्ट ड्रॉ अ ड्राइंग. Here is the suppose here is the rock mass. ये केस में क्या है कि रॉक मास है यहाँ से. So this is surrounded with impervious type of either surrounded with a steel bar. मतलब कि ये क्या होता है कि this will not allow the water. Suppose this is let's take a case which is filled with water at a pressure. तो इस केस में क्या होता है कि इन दिस केस इट इज सराउंडेड विथ स्टील सो इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट. तो आपके पास क्या केस हो जाता है कि द वाटर विल बी ओनली फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड द linear flow of water. Write it down. In case of linear flow, determination of permeability in case of linear flow. So you know Q is equal to K IA. So do you want to go for the derivation or just I write down the formula? What do you want? Anyone? Hello. See, so let's take a head constant. This is called determination of permeability at variable head constant. Write it down. Determination of permeability with variable head constant. It's at variable head constant. तो सपोज दिस इज द इनफ्लो ऑफ द वाटर जहाँ से आप वाटर आ रहा है और यहाँ से वो प्रेशर डाल रहा है. एंड इफ सपोज दिस इज अ हेड H1 and at the end
at the above section this h, let's small h. So what will be the formula? This is written as q by t and k and I delta p by delta l means change of the head with respect to length, delta h by delta l and a. So can it be written as, a d h by dt equal to k h l into a. So what is q? Q is the volume of water. Q is the volume of water. So अरे ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा, this is the d, diameter of this length. So that's it's d, it's a, cross sectional area is called a and it's a head. So ADH by dt is equal to KH into L, that's H by L is equal to I. तो इट्स कैन बी रिटर्न एज DH, आप इसको इधर से करो, DH by H इक्वल टू K इंटू A या L into A dt and integrate it H1 to H2 and here from T1 to T2. आप इसको इंटीग्रेट करो, आपका कितना आंसर? Sorry, dear man. Yes, Naveen. Capital A small में confusion. हेलो. सर स्मॉल क्या है? हेलो. हाँ हेलो नवीन. कैपिटल ए स्मॉल में कंफ्यूजन है सर. यहाँ पे कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस पे बात किया था. लेट्स टेक एन एग्जाम. व्हेन आई A, this A is the area of section through which the water is passing. It's A. This A. This is called A. Area of the cross section through which water is flowing towards the rock, flowing the rock. Do you got it? Yes, sir. But the area of rock mass, or the area of the system. Area, the contact area, contact area of the rock surface. देखिए, सपोज ये आपका सपोज दिस इज ये आपका रॉक मास है. देयर इधर से भी है एरिया, ये भी एरिया कहला सकता है, ये भी है और ये भी एरिया. बस कंडीशन है कि वाटर किधर से इनफ्लो कर रहा है. यदि आप वाटर का यदि वाटर इनफ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड इफ द वाटर फ्लो इज फ्रॉम इनफ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो देन दैट टाइम द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विल बी दिस. ओके, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन से आपको वाटर इनफ्लो कर रहा है. On integrating, we got log h1 by h2 equal to k into a by la t2 minus t1. This is the formula for different head constant. This is the laboratory determination for permeability of rock. सर यहाँ स्मॉल ए क्या है सर? Small a is this one. This cross section. This is the diameter. This is the D and diameter, and this is the A. आप इसको इट्स log टू द पावर e, तो आप इसको k के टर्म पे लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट. इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट राइट इट डाउन. आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, आप इसको फॉर्मूला q इज टू के आई ए, और समटाइम्स इससे यदि वो जब क्वेश्चन पूछता है एट अ डिफरेंट हेड कांस्टेंट, एक्चुअली दिस इज तो आप आपस से आप डेरिवेशन को याद रखिएगा, आप बाकी आपसे यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. it's the log base e when it's conversed when log base e
when log base e is converted into log to the log base 10, then it is multiplied with 2.303. okay. सर ये H2/H1 नहीं होगा? किसमें log H2/H1। अगर सर H1 से H2 ले रहे अपन लिमिट, तो फिर log H2/H1 होना चाहिए ना। हाँ H2/H1 लिख लो। H2/H1 okay. So the ultimate 2.30 log H2/H1 A into L A T2 minus T1. Santosh, are you there in class? यस सर। समझ में आ रही है कि कहीं पे कोई डॉट्स? हाँ, ADH/DT कैसे हुआ? See, T is the time and Q is the volume of water in flow. मतलब कि सपोज कीजिए कि let's take an सपोज आप एक बकेट रख लो एंड सपोज दिस इज अ रॉक मास। ये एक रॉक मास है कोई, एंड हियर इज अ कंटेनर। अब जब यहाँ से वाटर इनफ्लो करेगा तो ये वाटर यहाँ से पास होते हुए इस रीजन में पहुँचेगा, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा, सपोज द वाटर इज कलेक्टेड, जो भी इनफ्लो करके वाटर जो आ रहा है आफ्टर द पासिंग थ्रू द परमेबिलिटी ऑफ द रॉक, दिस इज कॉल्ड द क्यू, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड Q is equal to ADH. This is the volume of water. Okay. ADH। सर वॉल्यूम में तो एरिया इनटू हाइट होता है ना। DH means it's a DH चेंज, मतलब ये डिफरेंशियल का साथ, ये आप इसको अलग से डी कंसिडर मत करो। अच्छा, So similarly in the case of radial flow, write it for radial flow. Suppose this is a cylindrical specimen और जो water का inflow होगा it's radially, like suppose this is a container और vessel, मतलब experimental for the laboratory testing of vessel, और इस केस में क्या है आपका कि दिस इज अ कंटेनर वेयर वाटर विल बी कलेक्टेड एंड इट इज सराउंडेड विथ रॉक मास। ओके, इट्स सराउंडेड विद द रॉक मास। आप यहाँ पे क्या करो कि एक स्टील प्लेट गार्डर में डाल दो, दिस विल बी द स्टील प्लेट विच डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट। अब जब यहाँ से
वहाँ से वाटर का काफ़ी इन्फ्लक्स होगा. इफ इट इज लेट इज कंसिडर दिस वेजल इज फिल्ड विथ वाटर, एंड इन दिस केस आपके पास एक ही कंडीशन इस रॉक सरफेस के पास रह जाता है कि द वाटर विल बी इनफ्लो रेडियली फ्रॉम दिस डायरेक्शन. जो वाटर का इनफ्लो होगा ये रेडियली इस डायरेक्शन में होगा. तो फर्स्ट कंडीशन इज द लीनियर फ्लो ऑफ लीनियर. इन द फर्स्ट केस में क्या था कि जो वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा, जो इनफ्लो हो रहा था वो लीनियर डायरेक्शन में था. इन दिस केस it is flowing in radial direction like this. Okay, so here in case only lateral percolation through the sidewall will be considered. Okay, so you know Q is equal to K IA, so you can write Q is equal to K into delta P by delta R. उस केस में क्या था कि जो लेंथ था डेल्टा पी बाय डेल्टा एल इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज वाटर इज फ्लो फ्रॉम दैट डायरेक्शन. बट इस केस में क्या है कि जो वाटर का इन्फ्लक्स होगा या जो वाटर इनफ्लो करेगा दिस विल बी पास रेडियली. सो एल इक्वल टू आर. इस केस में एल इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा कि अल्टीमेटली यहाँ पे भेजल है आपका जो वाटर पर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है. सो जो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर थ्रू द रॉक मास विल बी इक्वल टू आर. इसके रेडियस के बराबर होगा. ओके, so it is replaced with the delta r. And area, what is the area? Anyone? यदि इस केस में वाटर ये इनफ्लो कर रहा है तो विच एरिया विल बी कंसिडर? lateral surface area. So it's a lateral area na, lateral surface area. So what is the formal lateral surface area in case of cylinder? So 2 pi RL. It's 2 pi r into L. So Q is equal to 2 pi K into delta P by delta R into 2 pi RL. So Q can be written as Q by T equal to K into delta P by delta R 2 pi RL. Okay. So आपको यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज करना है सिर्फ. यू हैव टू ओनली डू द रीअरेंज. इस डेल्टा आर बाय आर आप यहाँ पे क्या दो कंडीशन पे, डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू 2 पाई एल के एंड दिस टी, दैट्स टी बाय क्यू इक्वल टू इट्स हियर डेल्टा. आपको यहाँ पे डिफरेंशियल जो कैलकुलेट यहाँ पे जो आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपके पास दो टर्म, एक वन इज डेल्टा पी एंड वन इज डेल्टा आर. तो डेल्टा आर बाय डेल्टा पी. तो आप जब भी आप कैलकुलस करेंगे इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी आपके पास दो डिफरेंशियल मतलब दो डिफरेंशियल आइटम्स या क्वांटिटीज होते हैं तो हम लोग दोनों को एक एलएचएस में रखते हैं और एक आरएचएस में रख लेते हैं. दैट इज डेल्टा पी एंड यू जस्ट इंटीग्रेट इट. just integrate 2 pi l k and t, k t and q, these are the constant term, and here is the only the variable with the respect of the p is delta p, p1 to p2, and delta r from, let us consider r1 to r2, r1 to r2. if it r1 to r2, टेल मी फार्मूला. आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? जस्ट टेल मी व्हाट इज योर फाइनल आंसर एंड दिस विल गिव in the terms of k.
Tell me, what is your derived equation in the terms? First is log log R2 by R1. E, it's a E na, Yes, or sir. leg base R1 R2 by R1 equal to 2 Sir, pi L, yes, KT by Q. This is a constant terms and it is written as only P2 minus P1. yes, sir. यही हो जाएगा आपका. Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको K के टर्म पे आप लिखते हो. आप इसको K को यहाँ पे परमेबिलिटी कांस्टेंट, दिस इज द परमेबिलिटी कांस्टेंट, K is here is the permeability constant. If you rearrange the equations and try to write in the terms of K, तो आप K के लिए लिखते हो तो क्या आपको कितना हो जाएगा? Just leave it. It's Q equal to Q log E R2 by R1 divided by 2 pi L T P2 minus P1. Yes, sir. P2 minus P1. So if you convert this log base E into the log 10, तो आपका आ जाएगा Q log R2 by 1 divided by 2 pi LT P2 minus P1. Done. Note it. Have you written it? So the first equation is for the linear inflow and second one is for radial inflow. So the next topic is series or parallel combination. Series or parallel combination. Series and parallel combination. Have you noted this one? First write it down, so it will be helpful for when you go for the series and parallel combination. So have you noted it? Yes, sir. Yes. Anyone want to ask something? So in case of, let's go for the series combination for linear inflow. आप इसको डायग्राम अपने कॉपी पे बना लो. For the series H, suppose there is an H section. Here is an H1, H2, H2, H3, and up to that this is called Hn minus 2, or last one is Hn. This is the different head, and this is the Q. If the quantity of the water flowing from this direction to this direction, if it is let us Q and it is L1. इससे आपसे लास्ट में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जा सकता है, मगर आज तक उतना पूछा नहीं किया है. फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा. जस्ट गो फॉर द फंडामेंटल. आपको फंडामेंटल पता रहना चाहिए कि कैसे निकालते हैं और इसमें कॉम्बिनेशन कैसे उसका यूज करते हैं. ओके, तो कैन यू टेल फ्रॉम दिस फॉर्मूला आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन?
if you know Q is equal to KIA, if it is Q is equal to KIA, where I is equal to delta by delta L. Here delta P is also it can be written in the terms of head, that is H. आप इसको खुद से डी करने की कोशिश करो फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ट्राई टू मैच इट व्हेन आई विल सॉल्व दिस वन. इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो थॉट्स ऑफ मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना इस कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है. Anyone? सर एरिया कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ए आपके लिए कांस्टेंट है. ठीक है. सेकंड के कांस्टेंट है. देखो यदि आप सबके लिए के इक्वल मान के चलते हो देन के इक्वल टू कांस्टेंट ना. इट्स k1 k2 k3 so it is k is replaced with the k equivalent. ठीक है. अब मेन इसमें फंडामेंटल क्या है कि k इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे. था कि is it any problem with the echo? Yes, sir. मेरा आवाज मुझे खुद से रिपीट सुनाई दे रही है. Now it's fine, sir. Now it's fine ना. Sir. Okay. So आपको मैंने आप it just replace the k equivalent. Then then tell me the what will be the formula. Yes, you have tried well. Please tell me what is the formula. So can you tell Q is equal to K equivalent, it's I is equal to delta H delta L, okay, into A. So here delta H, आप delta H को क्या लिख सकते हो? What will be delta H here in this case? आपके पास H0, H1, H2, H3, Hn minus to Hn-1 से लेकर के Hn तक है कंडीशन दिया है. तो आप इस डेल्टा H के केस में क्या करें? Hn minus H naught. Yes, right. Hn minus H naught. So here you can tell here you can write Hn minus H naught to Q and L. L is equal to here L is equal to delta L equal to means the length of total inflow. This is called L. So L equal to L1 plus L2 plus L3 dot up to Ln. Okay. तो आपसे इस केस में क्वेश्चन पूछा जाएगा. सबसे पहला ये कर लो. ये कंडीशन आपको क्लियर होना. आपको जो H डेल्टा आप क्या करो जैसे आप इसको इस टर्म डेल्टा क्या होगा Hn माइनस H नॉट K विद द K इक्विवेलेंट. वी विल हम लोग फर्दर अभी सीखेंगे कि K इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है. दिस इज क्वाइट इजी लाइक वो जो आप सर्किट कॉम्बिनेशन में करते थे बस उसी तरह से इसमें भी करना है. तो Q it's Q by L. L is the total length. So L capital equal to L1 plus L2 plus L3 up to Ln. So it can total length LT and K equivalent by A. ये इस टर्म पे हो जाएगा. ठीक है. सो इसमें डेल्टा एच Hn माइनस H नॉट होगा Hn प्लस H नॉट होगा. Hn माइनस H नॉट. सो अगर हम किसी तीन का अगर केस लेते हैं मान लीजिए H नॉट से H3 तक तो हाँ. तो उसमें जैसे H3 माइनस H2 होगा पहला, फिर H2 माइनस H1 और H1 माइनस H नॉट. तो सर जब माइनस करेंगे तो आखिरी टर्म तो पॉजिटिव आ जाएगा. नहीं कैसे. आप यदि देखो फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों H1 माइनस H नॉट होगा. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन में लेते हो तो ये क्या लोगे H2 माइनस H नॉट.
H2 minus H naught. ओके ठीक है, सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो सो राइट इट डाउन फॉर द फॉर्मूला फॉर के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट आपके केस में क्या हो जाएगा? के इक्विवेलेंट इक्वल टू, Summation. हाँ, summation of li from I equal to n, write it down, I equal to n by summation from same I equal to 1 to n li by ki. Write it. This is the k equivalent in case of series combination. Okay. So आप इसको कैसे समझ सकते हो? k equivalent equal to q lt by h1 hn minus h naught into a। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जितना Q इनफ्लो कर रहा था उतना Q आउटफ्लो है। ये कंसिडर हम लोग को करके चलते हैं कि जितना इनफ्लो कर रहा है एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ लिक्विड during the course of inflow. तो here Q is constant, Hn minus H naught, this has totally depend upon the natural or the existing condition of the rock. A is here, the area of the cross section is constant. So K equivalent is directly proportional to LT. इस केस में क्या आ रहा है कि K equivalent आपका LT के directly proportional होता है. So if it is also in this condition, आप क्या कर सकते हैं, the total length of rock, this delta L इक्वल टू क्या दे रहा है, डेल्टा एल को यदि आप मतलब कि समेशन ऑफ एल आई और डेल्टा एल यदि इक्वल टू डेल्टा एल, दैट्स मीन टोटल लेंथ ऑफ रॉक। तो इट्स L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, दैट्स कॉल्ड गिव L। और इस केस में क्या होगा, Li डिफरेंट रॉक के लिए डिफरेंट के प्रॉपर्टी है। सीट डिफरेंट रॉक के लिए डिफरेंट आपका परमिएबिलिटी है। सो इट इज L1 by K1 plus L2 by K2. First let me erase. See, तो आपका क्या निकला है, K equivalent इक्वल टू इन केस ऑफ दिस टोटल लेंथ डिवाइडेड L1 by K1 प्लस L2 by K2 प्लस L3 by K3 डॉट L। ठीक है, या ऐसे नहीं इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट इट, क्योंकि डिफरेंट इसमें एक ही कंसेप्ट है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट रॉक, ये आपका जो ये फर्स्ट रॉक है, ये रॉक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फॉर रॉक 2, दिस इज फॉर रॉक 3 एंड सो ऑन, दिस इज फॉर रॉक n, and this is K equivalent for all the combination of rock. Now go for the second situation, that is the parallel combination. Parallel series combination in case of radial flow. Series case in case of radial flow.
suppose seizure of mass. तो in this case आपका मान के चलिए this is for the R1, this is for R1 and last one is for Rn, for nth number of, and here is H naught and last में आपका आ गया Hn. सेम कंडीशन जो आप लोग पैरेलल मान के चले थे, फर्स्ट वन फॉर H1, सेकंड इज H1 एंड सो ऑन अप टू Hn, एंड दिस इज L, लेंथ ऑफ रॉक. इस केस में रेडियल फ्लो के केस में क्या होता है, दिस इज फ्लो लाइक in this direction. Okay, so here is the same condition. आपको पता था Q इक्वल टू के आई ए, तो ये टर्म्स लिखना आपको. एंड हियर I इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच इक्वल टू एच एन माइनस एच नॉट. Similar to the series combination, then here you can write delta H is equal to Q by 2 pi L by ln Ri by Ri minus 1 divided by Ki. आपको आप जहाँ पे सीरीज को आपने जहाँ पे लिखा था रेडियल फ्लो, इन द केस ऑफ द रेडियल फ्लो द इक्वेशन यू हैव डिराइव्ड, go for the formula, you get this one, delta H, sorry this is delta H is equal to Q by 2 pi L ln Ri by R minus 1 by Ki. Okay, for nth if you go for this condition, then this is replaced by Ri equal to Rn and Ri minus 1 equal to R naught. So delta H is equal to Hn minus H naught equal to Q by 2 pi L ln Rn divided by R naught by K equivalent. So in this case you can write K equivalent. if it आप K equivalent को इधर ले जाते हो और Hn minus H naught को इधर कर देते हो, which is a constant term, so we can say in the आप जो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे थे, similarly like that condition K equivalent is directly proportional to ln Rn by R naught. तो इसमें भी क्या करना है आपको, K equivalent equal to, write it, K equivalent equal to ln Rn by R naught divided by summation of ln Ri by Ri minus 1 by Ki. That's K equivalent equal to ln Rn by R naught summation of ln Ri divided by R minus 1 by Ki. Write it. Hello, anyone has any concern? Anyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? Okay. If in case of no confusion, then see this diagram.
suppose this is k1, k2 dot 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 kn minus 2, kn minus 1 and this is kn. अब इसमें क्या होगा, इसका डिफरेंट परमिएबिलिटी इन केस दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस केस में क्या होता है कि जब रॉक इस टाइप से आपका सीरीज या लेयर वाइज बटा हुआ होता है, लाइक दिस इज केस फॉर एन सेडिमेंटेड टाइप्स ऑफ रॉक्स. इस टाइप में क्या होता है, जब ये लेयर बाय लेयर यदि डिपॉजिट रहता है और इफ द कंडीशन ऑफ द रॉक कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस, देन इसमें क्या होता है कि आपका डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि जो इसके पास डिफरेंस परमिएबिलिटी है. तो इसका जो नेचर होगा, द अमाउंट ऑफ द वाटर it will allow to flow through it will be different from this behavior. ये समझ में आ रहा है ना कि इसका परमिएबिलिटी डिफरेंट है, तो इसके थ्रू जो वाटर पास होगा वो डिफरेंट होगा. फ्रॉम दिस रॉक. सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एनीवन? दिस इज L. देन Q इक्वल टू, इफ Q इक्वल टू यू नो Q इक्वल टू KIA. ये आपका फंडामेंटल फार्मूला, ये आपका हर जगह यूज होगा. बस इसी से आपको क्या करना है, ये सारा कंडीशंस को आपको सॉल्व करना है. सो फिर Q इक्वल टू KIA, देन Q इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा L इंटू A. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? So for a single rock, for any rock, let it for any rock mass. So you can write Qi equal to any rock Ki into delta H, because delta H constant. Suppose here is H, here is different H naught, like H plus H, delta H यहाँ पे है. तो ये दोनों का delta H. So delta H and what will be here? Anyone? This is thickness. Write it down. इसमें एक कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? Everyone is different thickness. T1, T2, T3, T4, मतलब ये टाइप का, ये आपका सबका डिफरेंट थिकनेस होगा. इन दिस केस इफ समवन आस्क्स अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप इसको लेट इट बी लाइक दिस. ये T1 हो गया आपका, ये T1, दिस इज T2. सो व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया? A. Then A is equal to T1. You can write if it is width. Suppose it's the W. Width is always constant. So W1 T1 plus W2 T2 plus W3 T3 up to Wn Tn. So here we can write Wi, that is width into thickness of that rock mass, divided by total length, that is length from this length. Okay. Hello. Anyone has any confusion? Q इक्वल टू समेशन ऑफ Qi, मतलब टोटल वाटर क्या फ्लो करे, जो भी टोटल आप इसमें इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, द टोटल वाटर फ्लो इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल Qi, दैट इज Q1 Q2 Q3 Q4 up to Qn. So in this case you can write W, that's total width is constant for all whole rock mass, into delta H by L, this is a constant term, into K equivalent by summation of Ti, that is all the thickness of rock up to N. Write it. This will be the case of parallel combination. आपको इसमें क्या है कि आपसे जनरली इतना टी रॉक के लिए और इतने रॉक के लिए पूछा नहीं जाएगा.
जनरली आपसे एक या दो रॉक का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रॉक का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, और उससे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द परमेबिलिटी ऑफ रॉक, या टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लो, या उससे आपसे पूछ देगा क्यू एच आई, कुछ भी पूछ सकता है। और समटाइम्स क्या है, आपसे सिर्फ के इक्विवेलेंट पूछ देगा, तो व्हाट विल बी द के इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी द के इक्विवेलेंट। तो इस केस में क्या है, आपके पास वेरिएबल कंडीशन क्या हो रहा है, वेरिएबल क्या है, के आई, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट परमेबिलिटी है, एंड इट इज़ थिकनेस। थिकनेस फर्स्ट केस में क्या था कि मेरा इस, आप इसको यदि सीरीज कॉम्बिनेशन से डिवाइड करते हो तो यहाँ मेरा पास डिफरेंट डिफरेंट के का कंडीशन था, और लेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट था, L1 L2 L3 L4। तो उस केस में के इक्विवेलेंट हम लोगों ने क्या किया था, टोटल लेंथ मीन समेशन ऑफ एल आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल आई बाई के आई, यही हम लोगों ने किया था। अल्टीमेटली क्या है, यदि आप इसको वन के टर्म में पुट कर दो, इफ इट इज ओनली फॉर वन कंडीशन, दिस एल बाई के, तो दिस इज कॉल्ड के एल बाई एल, तो एल कट जाएगा, के इक्विवेलेंट टू के फॉर अ सिंगल रॉक मास। तो आपको याद रखना है, दिस इज दैट समेशन ऑफ एल आई बाय समेशन ऑफ एल आई बाई के आई। आप इसको चेक कर सकते हो फॉर वन रॉक के लिए, आप वन वन पुट करो, एल कट जाएगा और सिर्फ के बच जाएगा, देन के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन और के। तो इस कंडीशन में क्या, आपके पास दो कंडीशन है, दो है जो आपके पास वेरिएबल है, फर्स्ट इज द टी आई एंड सेकंड वन इज के आई। ओके, तो टी आई एंड के आई, so it is can written as, so in case of thickness it is written as summation of ki by ti divided by summation of ti. Write it down, this is for k equivalent. K equivalent is equal to summation of ki by ki into ti by summation of ki. Okay, hello, so this is this ये क्यूटी में सर अपन ने डब्ल्यू डेल एच एल के इक्विवेलेंट समीशन टी आई टू एन तक लिखा है, तो सर इसमें ये जो हाँ डब्ल्यू टी आई थिकनेस को अलग लिखा है क्या अपन ने, width और thickness को? इसका हेलो, हाँ सर, आ रही आवाज? आ रही है, तो आ रही है, तो इन केस में मेरी आवाज खुद से रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई लेट मी ज्वाइन इट अगेन। यस सर। अब आवाज बेटर जा रही है? आ रही है सर। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? जो क्यूटी है ना सर, इसके अंदर समीशन ऑफ क्यू आई लिखा है अपन ने, तो डब्ल्यू इंटू डेल एच बाई एल के इक्विवेलेंट समीशन ऑफ टी आई टू एन तक लिखा है सर। इसमें अपन ने विड्थ सेम मानी है क्या सर सबकी? हाँ, विड्थ सबकी सेम है। इस केस में आप देखिए डब्ल्यू में ये आपका डब्ल्यू है, तो ये आपका थिकनेस है। तो एक रॉक के लिए क्या, ये डब्ल्यू आपका क्या कांस्टेंट है टू द होल फ्रॉम के आई टू, मतलब के वन टू के एन, दिस इज विड्थ इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रॉक मासेस। हमने मान के चला है दिस इज जस्ट अ क्यूबिकल और रेगुलर शेप, दैट्स व्हाई विड्थ आपके लिए हर केस में आपका कांस्टेंट होगा या सेम होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे दो कंडीशन रखना है, के इक्वल टू क्यू इक्वल टू के आई ए, ये आपको याद रखना है, और सेकंड कंडीशन आपको याद रखना है के इक्विवेलेंट। तो इन केस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जब हम लोग का डिफरेंट, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज समेशन ऑफ एल आई बाई समेशन ऑफ एल आई बाई के आई। ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समेशन ऑफ के आई टी आई
बाय समेशन ऑफ टी आई। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है कि लास्ट में आप अल्टीमेटली पुट करके देखोगे, यदि आप इसको समेशन के हटा दो तो देखना यहाँ पे टी आई ये दूसरे से कैंसिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड ओनली आपके पास जो लेफ्ट हो जाएगा वो सिर्फ के हो जाएगा। तो समझ लीजिए ना, समझ लेना कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो आपने सही लिखा है। और इन दिस केस, इन समेशन ऑफ एल आई बाई समेशन ऑफ एल आई के आई, एल आई बाई के आई, तो इस केस में क्या होगा, आप यदि इसको समेशन को अभी इग्नोर करके चलो तो आपको यहाँ पे एल आई बाई के आई बचेगा ये, और एल आई कट जाएगा और के इक्विवेलेंट टू के आई के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ लाना कि इस केस में भी आपने इक्वेशन या फॉर्मूला सही लिखा है। सो दिस इज द वे टू रिचेक कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका के टर्म पे ही आना चाहिए के इक्विवेलेंट। So here is, so this is the last on the permeability. Anyone has any confusion regarding the permeability? So इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि गेट में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। Still anyone has any confusion? Then he can tell me. Anyone? आप पूछ लो, क्योंकि आप इसमें ये लर्निंग फेज में क्वेश्चन पूछने से आप हिचकिचाइए नहीं। सर हेड डिफरेंस समझ नहीं आया, लीनियर वाले में। तो लीनियर वाले केस में हेड डिफरेंस जहां तक मैंने बताया वो आपको समझ में आ चुका है। तो इन केस आप क्या सर करो, वो शुरुआत में क्या था ना सर, जो आप बनाए थे लेबोरेटरी टेस्ट में H1 और H2, वहां पे सर समझ नहीं आया थोड़ा सा। तो H1 और H2 क्या है कि डिफरेंट हेड्स है, इन दे आर द डिफरेंट हेड्स। एक जब रॉक मतलब मेरे पास वो एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं है, यदि वो रहता तो मैं उससे आपको दिखा देता। यदि आप इसमें बेटर जानना चाहते हैं तो मैंने आपको देवाशीष दे और अभिराम वर्मा की जो बुक भेजी थी ना, यस सर। हाँ उसमें, या कोई भी आप जो स्टैंडर्ड रॉक मैकेनिक्स का बुक फॉलो करते हो आप उसमें लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिफरेंट हेड कांस्टेंट, परमेबिलिटी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिफरेंट हेड कांस्टेंट, आप उसमें जाओ एक बार उसको खुद से देखो, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे बताओ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सर पैरेलल केस में लीनियर आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो हाँ हेलो। सर, पैरेलल के केस में लीनियर और आइडियल। आप क्या करो कि आप एक काम करो, आप इसको चैट बॉक्स में लिख दो, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। आपकी आवाज़ पूरा कट जा रही है। Any others? Hello? Anyone any confusion? सर पैरेलल में रेडियल कंडीशन नहीं होगा क्या? पैरेलल में तो हेड वाली कंडीशन हो रही थी ना, हम लोग ने H1 H2 H3 H4 डिफरेंट लिया था। उसमें हम लोग डायरेक्ट, हम लोग का क्या है कि डेल्टा H है, मतलब वाटर। देखिए आपने जब फिजिक्स में जब आपने पढ़ा होगा, सपोज दिस इज ए सपोज दिस कंडीशन, ठीक है, ये कोई स्टेयर कंडीशंस है, यहाँ पे बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ जाती है, तो इन लोग दोनों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंट करते हैं, mg(H1 - H2) इक्वल टू हाफ mv²। तो इतना ही अमाउंट ऑफ आपका यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर रहा है, द लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन। तो ये जो हेड आपका लॉस हो रहा है इसके कारण से, मतलब यह हेड इज द ग्रेविटेशनल हेड आपका होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया बर्नौलीज। तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल हेड, जो यहाँ हेड लॉस हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो सपोज अब ये रॉक मतलब ये बॉल अब डायरेक्ट फॉल कर रहा है नीचे में, डायरेक्ट थर्ड स्टेयर केस में। तो इस केस में क्या होगा, पहले तो लॉस जो एनर्जी हुआ था ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मगर जब बॉल यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जा रहा है थर्ड स्टेज केस में,
तब हम लोग डायरेक्ट लॉस यहाँ से यहाँ का कंसिडर करते हैं। तब हम लोग बीच में नहीं देखते हैं कि मेरे पास H2 भी था, मेरे पास H3 भी था। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हियर mg, यहाँ पे जो पूरा नीचे पूरा हाइट है H4 माइनस H1 इक्वल टू हाफ mv², ये लेते हैं। तो हम लोग बीच का इंटरमीडिएटरी स्टेशन से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या था नहीं है। हम लोग को डायरेक्ट फाइनल कंडीशन में फाइनली हम लोग देखते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द हेड यू लॉस और यू गेन। ठीक है, आप कितना काइनेटिक हेड गेन कर रहे हो और कितना ग्रेविटेशनल हेड लॉस कर रहे हो। हम लोग फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को देखते हैं, बीच में इंटरमीडिएटरी स्टेशन को नहीं देखते हैं। सपोज लेट मी क्लियर माई स्क्रीन। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिजिक्स का ही मतलब एक सिंपल सा केस देता हूँ आपको। सपोज दिस इज लाइक दिस इन रोलर कोस्टर राइड। ठीक है, ये कंडीशन है। आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे थे, उसमें आपका वेलोसिटी 0 था। आप इस कंडीशन पे आते हो तो आपका वेलोसिटी भी है समथिंग। ठीक है, और टोटल हाइट आपका यहाँ पे h है, ये यहाँ पे h1 है। यहाँ से स्टेट पॉइंट से ये h2 है, ये h3 है, ये h4 है, लाइक दिस यहाँ hn है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर। तो आप हर एक कंडीशन पे पोटेंशियल लॉस नहीं कंसिडर करोगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे देखना है। इसका किस पाथ से it do not depend upon the path you follow, it is directly depend upon the final position and the initial position। तो इसलिए वहां पे हम लोग ने डायरेक्ट डेल्टा H इक्वल टू HN माइनस H0 किया था। यही आपका मतलब, आप कंसेप्ट क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अब क्लियर हो रही है मतलब। आप किसने क्वेश्चन पूछा था? व्हेन आस्क्ड द क्वेश्चन? हैव यू गॉट दिस? और so let it be. Our next topic will be the seismic wave velocity. So try to understand कि in the case of the dynamic load is applied to a rock, the various seismic wave will and this is basically the two types of wave, that is first is the body wave and another one is the surface wave. So seismic waves are generally different types, the P S wave, love wave and different waves. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइमरी दो वेव्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट इज द P wave and second is the S wave. So in this the dynamic velocity or the dynamic wave velocity or seismic wave velocity in the case of rock, इस केस में क्या हम लोग को करना है, दिस प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो कॉल्ड द डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा जब आप ग्राउंड वाइब्रेशन पढ़ोगे, ब्लास्टिंग ग्राउंड वाइब्रेशन, ब्लास्टिंग इन्फ्लुएंस, वो सब पढ़ोगे, तब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। and this is very similar to the analysis of any of the surface during the condition of earthquake. अर्थक्वेक के केस में भी क्या होता है कि देयर इज अ ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज बेसिकली फ्लो इन द फॉर्म ऑफ एस वेव, पी वेव। प्योर एस वेव में ही आपको फ्लो करता है। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट इज अ पी वेव। पी वेव इज जनरली कॉल्ड द मैकेनिकल टाइप ऑफ वेव। जैसे आपने साउंड के केस में पढ़ा था कि साउंड के केस में क्या आता था, कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन के टर्म्स में ट्रेवल करता था। हाउ द साउंड फ्लो थ्रू द एयर, it is basically called longitudinal wave. It's called longitudinal wave like sound. तो ये क्या होता है, आपका compression and rarefaction के टर्म्स में मीडियम में वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन तक ट्रेवल करता है। ओके, like this. The particle if you consider only one particle in the rock, this is travel in like this, to and fro motion in longitudinal direction, or plus x axis to y axis.
if you consider this as an axial direction, so it is y, so it is only travel from plus x axis to minus x axis, longitudinal wave, longitudinal condition में. This is sometimes also called longitudinal waves, and it has all the properties similar to the sound wave. Now second wave, the second types of wave is called S wave. S wave is also called surface wave, and it is travel in the forms of transverse wave, like in the condition of electromagnetic wave. And the nature of the motion of the particle is also the to and fro, but in vertical direction, that is plus y axis to minus y axis, plus y to minus y, like this. This is called the transverse wave. So there are the as I already told, there is another commonly known surface waves are, first is the Rayleigh waves, love wave, Stoney waves, guided wave and एक्सेट्रा. बट जो हम लोग यहाँ पे प्राइमली फोकस्ड करेंगे वो है आपका एस वेव एंड पी वेव पे. सो दिस property is very useful in order to study dynamic characteristic or dynamic behavior of the rock mass, dynamic properties of the ground, or also the ground vibration due to the dynamic load, soundness of the rock block, and for the different conditions. So let's take an example. This is a source of the seismic wave. It is better if you understand with the terms of earthquake के ही कंडीशन से मान के चलो, या आप इन केस ऑफ आपका कोई भी सिस्मिक वेव सोर्सेस होता है इन केस ऑफ द अंडरग्राउंड माइनिंग. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सिस्मिक वेव जनरेशन इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग? एनीवन एग्जांपल? पे सर हथौड़ा मारेंगे अपन. व्हाट सर ब्लास्टिंग सर. Blasting is a common, yes, blasting is a common example in the case of mining. Blasting के केस में सबसे ज़्यादा सिस्मिक वेव जनरेशन होता है, और माइनिंग में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम लोग डील करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ग्राउंड वाइब्रेशन और फ्लाई रॉक्स. दिस केस में आपका ये ब्लास्टिंग होता है. हैमरिंग और मूवमेंट ऑफ HEMM, दीज आर द टेम्पररी और द शॉर्ट टर्म्स. अब वो भी सोर्स होता है सिस्मिक वेव जनरेशन का, जिससे आपका सरफेस वेव और बॉडी वेव जनरेशन होता है, मगर वो उतने मतलब कि उतना उस कंडीशन पे नहीं हो पाता है. सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, अगर स्टैंडिंग है, आपके बगल से आपको कोई बड़ा HEMM क्रॉस कर रहा है, मे बी एनी मशीन्स, तो आपको क्या होता है, आप यदि काफ़ी सामने रहोगे तो आप उस वाइब्रेशन और वो जो सरफेस वेव और जो बॉडी वेव है ना, आप उसको फील करोगे. मगर जैसे जैसे आप दूर जाओगे आप इसको नहीं फील करोगे, बिकॉज द लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वेव्स आर इज वेरी रैपिड इन द नेचर. तो आप यहाँ पे रहोगे तो काफ़ी, मगर इन केस ऑफ जब अर्थक्वेक आता है और सपोज इन केस ऑफ माइनिंग आप जब ब्लास्टिंग करते हो, तब इसको हम लोग दूर दूर तक फील कर सकते हैं, because they are in case of the blasting, this is a huge and the tremendous source of seismic wave generation. तो अब इसमें आप दो केस हो जाता है आपका. फर्स्ट होता है बॉडी वेव एंड सेकेंड इज होता है सरफेस वेव. तो सरफेस वेव और बॉडी वेव कुछ इस टाइप का फ्लो करता है. See this, suppose this is in a surface. If for the movement, if in case of the generation, ये क्या होता है कॉल्ड, देख लो यहाँ पे पार्टिकल आपस में पार्टिकल्स काफ़ी एक देखो जो द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज वेरी लेस एज compared to the original state, and this is called rarefaction. तो आपका जो बॉडी वेव होता है कुछ इस टाइप का ट्रेवल करता है throughout the length. This is the nature of the P wave. This is called S wave. So P wave क्या होता है, आप इस कंडीशन में देखो, the S wave is generally propagated through the surface of the body. ये आपका सरफेस है. This is the surface. तो सरफेस से जो एग्जैक्टली जो सरफेस में फ्लो करता है, this is called the surface. That's why it is called the surface wave. And जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, then
the surface wave is replaced with the P wave, or this is generally called the body wave. Okay, and see, this condition is called the Rayleigh wave condition. Rayleigh wave is also a part of the surface wave, but here the transmission is from upward to downward direction, or downward to upward direction. Upwelling or downwelling, it's maybe upwelling or downwelling, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मीन्स सरफेस से बॉडी, बॉडी टू सरफेस, इस टाइप का नेचर ऑफ कोई भी वेव्स आपके पास हो, सो दीज आर कॉल्ड रेली वेव। ओके, सो just see it. We have seen the P wave is called also primary wave. It's a longitudinal in nature, and S wave is called shear wave or transverse wave, and the third one is called Rayleigh wave. तो एक्चुअली आपका केस में होता क्या है कि आपका सपोज दिस इज अ रॉक मास, अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्यूबिकल रॉक मास, इट्स area A, and suppose it is in a stress applied on the body, ठीक है। if you apply the stress on the body, then ये यहाँ से यदि आप ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस डेल्टा वी कंडीशन, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ आपका चेंज करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ यहाँ पे जो आपका वेव प्रोपोगेट या ट्रांसफर्स होके आएगा, ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस, sigma x plus d, that's called, either is called partial differentiation, this is called partial differentiation of sigma x with respect to x because it travel through this distance, ठीक है, into delta x, it's may be minus or plus if it is ये यदि ये लूज कर रहा होगा, मतलब कि if the stress is will be the loss through the propagation or the transmission, then it's called minus, and यदि वो यहाँ से गेन कर रहा, if there is in the source through the direction, that will you get plus। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, the new stress condition will be partial differentiation of sigma x with the respect of x into delta x, okay। So what will be the volume? या फिर यदि आप न्यू वॉल्यूम को बात करते हो डेल्टा भी, तो डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा वॉल्यूम इज जनरली कॉल्ड व्हाट इन द टर्म्स ऑफ मास और डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हियर डेल्टा भी इक्वल टू व्हाट, a into delta x, एरिया into delta x, मतलब कि a is the contact, मतलब जनरली कॉल द एरिया थ्रू विच इट्स ट्रांसमिटेड, किस एरिया से वो ट्रांसमिट हो रहा है। यदि वो द नेचर जैसे वो कॉन्टैक्ट एरिया की बात कहते हैं, सेम इस कंडीशन में भी जिस केस में आप परमेबिलिटी की बात कहते हैं, किस कॉन्टैक्ट एरिया के थ्रू होकर वो ट्रेवल कर रहा है, वो एरिया यहाँ पे डिपेंड करता है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड दिस कॉन्टैक्ट एरिया, और द एरिया थ्रू विच ट्रांसमिटेड a into delta x, so v equal to a into delta x, so what will be the mass? आप mass of rock बता सकते हो, मतलब similarly what will be the mass from this one, it's density into a delta x, write it down। तो एक्चुअली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन पे हम लोग ये वी आर स्टडिंग द टॉपिक का नाम है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक मास, वी आर स्टडिंग द डायनेमिक कंडीशन ऑफ रॉक मास।
डायनेमिक कंडीशन ऑफ रॉक मास। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है? तो देन if you write force is equal to mass into acceleration and it is mass is replaced by this a delta rho a delta x into a. Okay. So rho a into delta x, and if it is replaced with, if it is suppose the particle is traveling along this direction, यदि वो इसके कंडीशंस में हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडीशन इन केस ऑफ द सरफेस वेव, if it is flowing then the motion of the particle is along y direction. The acceleration, you know, velocity is equal to change in the change in the displacement or the change in the distance with respect of time. Then acceleration can be written as dv by dt, then a equal to double differentiation of y with respect to t. So here force is equal to a rho delta x d square y by dt square. This will be the first condition. Write it. यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना? यस सर। Okay. Now we know force is equal to stress into acceleration. स्ट्रेस इंटू एक्सलेशन, तो हम यहाँ से हम लोगों ने न्यू स्ट्रेस निकाला था, दिस डेल्टा, सो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू डी एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मा एक्स with respect to x into delta x. So this equation will be 2. Write it 2. Equate 1 and 2. Equating 1 and 2. Tell me on equating what you get. अब जब 1 और 2 को इक्वेट करते हो, बिकॉज हियर फोर्स इक्वल टू फोर्स, क्या कि दोनों कंडीशन में सेम रॉक मास में आपको फोर्स लग रहा था, बट वन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनदर इन टर्म्स ऑफ एक्सलेशन, इन द अनदर मास इनटू एक्सलेशन. तो आप दोनों को इक्वेट करते हो तो आपका कितना कंडीशन, क्या कंडीशन आ रहा है? एनीवन? So here is equal to a into rho dx d square y by dt square equal to a into dx delta x. तो आपका क्या a कट गया इस कंडीशन में, डेल्टा एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपके पास क्या बचा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज रो, आपके पास एक रो बचा है एंड दिस कंडीशन, तो इट्स रिटर्न एज 1 बाय रो इक्वल टू बाय डी एक्स. आप यहाँ तक लिख लो. Do you know what is the general equation for the propagation of any electromagnetic wave? मतलब फर्स्ट बार में yes please tell me. No sir. Okay, have you seen this formula? D square by dt square is equal to v square और written generally v square d square by dx square. आपने ये फॉर्मूला कहीं देखा है? ताकि तब आपको पता चलेगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ. हैव यू सीन दिस फॉर्मूला?
एनीवन? दिस फार्मूला, ये फार्मूला कोई मतलब कि मामूली फार्मूला नहीं है. दिस फार्मूला ब्रिंग द रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड. एनीवन? Who is नो the सर। father of generally who is the father of electromagnetic waves? मतलब who has coined the terms electromagnetic waves? So generally it's a Heinrich Hertz. So if you go for the names of James Clerk Maxwell, it's Maxwell. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. आपको थोड़ा सा जैसे पता होना चाहिए जब आप डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स पढ़ते हो या किसी भी टाइप का वेव पढ़ते हो, तो ये आपको ये मैक्सवेल आपको हमेशा मिल जाएंगे. मैक्सवेल ने क्या किया था, जैसे हेनरिक हर्च के पोस्टुलेट से, और उन लोग मैक्सवेल ने क्या किया, इफ एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल मूव, यदि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, यदि वो एक्सेलरेट मतलब कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, any charge particle accelerate, then it loses the energy in the forms of electromagnetic wave. अब जब electromagnetic waves के बारे में आप पढ़ते हो, तो suppose this is an electronic wave and it is associated with magnetic wave, and these are perpetual to each other. होता क्या है कि आप इसको कोरिलेट कर सकते हो फराडे लॉ से. फराडे लॉ से क्या उन्होंने इंडक्शन में क्या बताया था, इंडक्शन में बताया था ड्यू टू द परपेचुअल चेंज इन द मैग्नेटिज्म, जब मैग्नेटिज्म का परपेचुअल चेंज होता है तो उसके कारण से हम लोग के पास एक नया टर्म कॉइल, मतलब एक न्यू चीज का जनरेशन होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. और फिर हम लोग ने इसका वाइस वर्सा पढ़ा था कि जब हम लोग किसी कॉइल के थ्रू डीसी करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग पास करते हैं, then it's result in the formation of magnetic, that's called electromagnetic. ये हमने पढ़ा था ना. this means मैग्नेटिज्म के पास इतना कंडीशन होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, और ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो सेम केस हम लोग क्या होता है, तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द ये फॉर्मूला था जिससे से उन्होंने बताया था कि देयर इज अ कंडीशन कि there is an existence of wave that is called electromagnetic wave, and this is a general formula which described Maxwell with the help of this formula. This means any change in the particle, acceleration of the charged particles with the respect of this formula, the rate of the change of any particle with the respect of the time, that is c. Here in this case of electromagnetic wave, this is called c, speed of light in the air. Okay, with the respect of the change of the particle with the respect of distance. तो आप इस फॉर्मूला को याद रखना हमेशा, ये आपको यहाँ पे होगा. सो हैव यू रिटन अप टू दिस टर्म. मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं किस चीज़ को यहाँ पे इन केस ऑफ माइनिंग कंडीशन में, और इस केस में मैं कैसे वहाँ पे ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रेस इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स एंड मतलब सरफेस वेव्स, जनरली द ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे वो मतलब कि आपका ये कंडीशन को, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेव्स कंडीशन को कैसे बताता है, वेव थ्योरी से कैसे प्रूव करते हैं. सो हैव यू रिटन अप टू दिस. तो उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ. फॉर लिनियरली, राइट इट डाउन. फॉर लिनियरली इलास्टिक बॉडी यू नो दैट्स, आपने तो ये पढ़ा है. Which formula it is? Anyone? Hello? Are you listening? Yes, sir. Modulus of elasticity. This is modulus of elasticity. This is stress and this is strain. That's a Hooke's formula. तो
आप जब हुक्स फार्मूला से डिराइव करते हो तो इफ डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स you got equal to change of elasticity with respect to x. Okay, and you know strain is equal to delta L by L. Delta L by L here in this case, if the particle is moving from plus y axis to minus y axis, plus y to minus y, that means you can say change in y axis with respect to x. दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी व्हेन आप किसी भी पार्टिकल्स जब वो किसी भी सरफेस पे यहाँ पे मूव करता है तो व्हाट विल बी द चेंज आप देखिए इस कंडीशन पे सी इफ बॉडी इज मूविंग लाइक दिस इन ट्रांसवर्स में कंडीशन ये x है सपोज कर लो दिस इज x 0 प्लस एक्स एक्सिस रेटेड माइनस एक्सिस ये हो क्या रहा है जैसे जैसे x में चेंजेज आ रहा है देयर विल बी द चेंजेज इन y सो दिस टर्मिनोलॉजी इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं दिस टर्मिनोलॉजी एक्चुअली इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी क्योंकि मतलब सॉरी दिस टर्मिनोलॉजी इट्स कॉल्ड स्ट्रेन क्योंकि ये बॉडी पहले फ्लैट था जैसे यहाँ से सरफेस वेव जनरेट हुआ बॉडी अब कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहा है तो हियर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू dy by dx ओके dy by dx. So it is replaced with what dy by dx. So d sigma x by dx equal to e times dy by d square y by dx square. और यहाँ से हम लोगों ने देखा था from the previous section we have already noted d square y by dt square is equal to 1 by rho of sigma dx d sigma x by dx ठीक है अब ये d sigma x by dx को आप यहाँ पे आके पुट कर दो यहाँ पुट करो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा रो टाइम्स ऑफ d square y by dt square is equal to e by d square y by dx square. Have you got it? ये पता थोड़ा सा मतलब थोड़ा थियोरिटिकल जा रहा है पर आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा कि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी कैसे हम लोग स्टडी करते हैं इन केस ऑफ रॉक मास. आई नो दिस इज लिटिल बिट बोरिंग पर जिनको समझ में आ रहा होगा उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये ई बाय सिग्मा इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. और ये फॉर्मूला हम लोग ने इन दिस केस वी नो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द स्टैंडिंग वेव्स वी नो d square y by dt square is equal to c square or v square that is the velocity of wave into d square by dx square. These are the two equation. ठीक है तो मीन्स अब हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑन कंपैरिजन ऑफ द बोथ velocity of any waves through a rock mass is equal to e by rho v square is equal to e by rho. तो आपसे यदि कोई पूछेगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रॉक इफ इलास्टिसिटी इफ द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ रॉक इज गिवन देन यू कैन से इट्स v स्क्वायर बाय ई बाय रो. यहाँ से आपका फॉर्मूला आता है v स्क्वायर इक्वल टू ई बाय रो. So v is equal to under root e by rho. Note it. This is called velocity of wave through the body. Velocity of wave through rock mass. ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं. Anyone has any confusion up to that point? Hello? No, sir. ठीक है. If no one has any confusion, then अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे
हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव को इन द टर्म्स ऑफ कैसे हम in the terms of the Poisson's ratio, in the terms of modulus of elasticity, rigidity and all that condition, कि कैसे हम लोग निकालते हैं जनरली, जिसमें गेट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में इस टॉपिक से रिलेटेड. सो अप टू दिस. हाँ, यस यस. सर जब प्रीवियस क्लास था उसका वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने? अपलोडेड है, वो अपलोडेड है. प्रीवियस क्लास का लेक्चर क्लास अपलोडेड है और मैंने इसका लिंक गेट एक्सेल के साथ नोटिफिकेशन में भी शेयर कर दिया नोटिस बोर्ड में. सर ट्यूसडे हुआ था वो? हाँ नवीन. सर ट्यूसडे को जो हुआ? हाँ, ट्यूसडे को भी जो हुआ वो मैंने दोनों शेयर कर दिया. आप चेक करो एक बार. Up to that section, if no one has any problem, then I am going to sum up the class. Okay, then goodbye. Thank you, sir. Thank you. Okay, if one more thing, after 10 minutes, it's 6:50. After 10 minutes, join 7 between the 7 to 7:05 in the teachment class. There will be the class of mind machinery in the teachment. Thank you, sir. Hello, sir. Okay. Hello, sir. Hello. हाँ लोकनाथ. Sir, if possible, briefly explain about the Mohs circle, sir, because I missed the class. सर रॉक मैकेनिक्स का सारा लेक्चर्स रिकॉर्डेड है क्या सर टीचमेंट पे? टीचमेंट पे हाँ, सारा क्लास रिकॉर्डेड है. एक्चुअली हम लोग ने जो अपना कंपनसेटरी क्लास का जो क्लासेस है हम लोग का वो रिकॉर्डेड है, मगर जो हम लोग ने पहले क्लास करवाया था वो रिकॉर्डेड नहीं है. ओनली द कंपनसेटरी क्लास एंड द रेगुलर क्लास आफ्टर. ओके सर. सर मींस वहाँ पे सारा लेक्चर्स है ना ये मैकेनिक्स